السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مانسون کی تیاریوں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ تباہ شدہ سڑکوں، منہدمہ پلوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈز جاری کیے جائیں۔ پروجیکٹ کی دیکھ بھال اور گیٹس کے کام جنگی خطوط پر کیے جائیں، عہدیداروں کو دی گئی ہدایت۔ تلنگانہ حکومت نے تبادلوں پر لگائی دوبارہ پابندی، 1 جون سے عمل درآمد۔ تمام محکمہ جات کو سختی سے عمل کی ہدایت، 6 ماہ تک نرمی کی تجویز پر غور نہیں ہوگا۔ عام آدمی کو لگا مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 42 روپے کا ہوا اضافہ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقلیتی طلباء کے لیے وزیر اعلیٰ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم 2026 کا اعلان۔ آن لائن درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر۔ تلنگانہ میں 5 دن کام کا ہفتہ بنانے کی تیاریاں، یوم تاسیس تلنگانہ تقریب میں وزیر اعلیٰ کے اعلان کا امکان۔ کار میں بیٹھ کر موبائل پر IPL میچ دیکھنے کا بھیانک انجام، جگتیال میں کار باولی میں گر گئی، ایک نوجوان ہلاک۔ آن لائن بیٹنگ ایپ کے خلاف CID کا 3 ریاستوں میں کریک ڈاؤن، 11 افراد گرفتار، 46 بینک اکاؤنٹ منجمد۔ CID چیف چارو سنہا کی پریس کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست تلنگانہ میں ماہ جون سے 5 یوم کا ہفتہ ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین و عہدیداروں کو ہفتے میں 2 یوم کی تعطیل دی جا سکتی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تیل اور برقی کی کھپت میں کمی کے اقدامات اور وزیر اعظم مودی کی اپیل کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے قافلے کی کاروں کو کم کرنے کے بعد یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کے لیے 5 یوم کا ہفتہ کر دیا جائے اور پیر تا جمعہ کام کے ایام قرار دیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق یوم تاسیس تلنگانہ 2 جون کی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس منصوبے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیموں نے بھی ریاستی حکومت سے 5 یوم کا ہفتہ قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر حکومت سے 5 یوم کا ہفتہ قرار دیا جاتا ہے تو سرکاری دفاتر میں بھی مرکزی سرکاری دفاتر کے طرز پر ہفتے میں 5 یوم کام کریں گے۔ ملک میں توانائی اور ایندھن بحران کے نتیجے میں وزیر اعظم مودی نے جو اپیل کی تھی، اس کے بعد کئی ریاستوں میں ورک فرام ہوم کو فروغ دینے کے اقدامات کیے گئے اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے ہفتے میں 2 دن سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی سہولت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ یوم تاسیس تقریب میں 5 یوم کے ہفتے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مانسون کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ کسانوں میں ممکنہ بارش کی کمی کے پیش نظر حالات سے نمٹنے کے لیے شعور بیدار کریں۔ کسانوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ ان فصلوں کو فروغ دیں جن کے لیے پانی کم درکار ہوتا ہے اور اس فصل کے فائدے سے بھی شعور بیدار کریں۔ تمام پروجیکٹ کے مینٹیننس اور گیٹ کے کام جنگی خطوط پر انجام دیے جائیں۔ پروجیکٹ کے مینٹیننس کے کاموں کے لیے فوری ٹینڈرز جاری کریں۔ تباہ شدہ سڑکوں اور منہدمہ پلوں کی فوری مرمت کے لیے فنڈز جاری کیا جائے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 1000 کروڑ روپے کے فنڈز کا بھی قاعدے کے مطابق استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ آفات کے دوران جانی اور املاک کے نقصان کے علاوہ مویشیوں کے نقصان پر بھی فوری اقدامات کریں۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے جنوب مغرب مانسون کی پیش رفت اور دیگر اہم پہلوؤں سے بھی وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری راما کرشنا راؤ، DGP CV آنند کے علاوہ صحت، پنچایت راج، داخلہ، ہائیڈرا، آفات سماوی کے علاوہ فائر بریگیڈ کے عہدیدار بھی شریک تھے۔
हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद ने अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के ज़रिए बैरूनी मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले अहल अक़लियती तलबा को माली मावनत फराहम की जाएगी। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वो अक़लियती तलबा जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG या PhD की तालीम के लिए बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल कर चुके हैं वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत मुंतखब उम्मीदवारों को 20 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि एक तरफा हवाई सफ़र के लिए 60,000 रुपये या असल टिकट की रकम जो भी कम हो अदा की जाएगी। ये स्कॉलरशिप अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटियों में ज़र तालीम अक़लियती तलबा के लिए दस्तयाब होगी। महकमे के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 1 जून 2026 से शुरू होगा, जबकि दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। उसके बाद उम्मीदवारों को मुतालिका ज़िले अक़लियती बहबूद दफातर में ज़रूरी दस्तावेज़ात और असल तालीमी ट्रांसक्रिप्ट्स जमा कराने होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम उन तलबा के लिए काबिल इतलाक़ होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के दरमियान बैरूनी मुल्क तालीमी इदारों में दाखिला हासिल किया हो। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन खेरा की हैदराबाद में मुजव्वज़ा जलसे को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने तेलंगाना के अवाम की इज़्ज़त व नफ्स को ठेस पहुँचाई हो। अगर बीजेपी की हिदायत पर पवन कल्याण तेलंगाना में नफ़रत और फ़िरक़ावारियत को हवा देना चाहते हैं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि पवन कल्याण अपना इजलास बीजेपी की इख्तियार वाली रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल किया कि क्या पवन कल्याण अपने बॉस मोदी को खुश करने के लिए हैदराबाद में ये इजलास करना चाहते हैं। पवन कल्याण को पहले तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ इजलास करना चाहिए। तेलंगाना పోరాట యోధులుగా అమరవీరులు కావచ్చు లేదా పూర్తి స్థాయిగా ఇబ్బంది పడ్డటువంటి వాళ్ళు కేసులు ఇతరత్ర ఉన్నటువంటి వాళ్ళను గుర్తించి గౌరవించాలి, గుర్తింపాలని ఒకవైపు తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గుర్తింపు గౌరవాన్ని ఇచ్చే కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఆ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటుంటే తెలంగాణ ఎట్లా పడితే అట్లా తిట్టినాయనే, తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి విఘాతం కలిగించిన ఆయనే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవంలో రైట్ ఇది ఒక ప్రజల ఆకాంక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మేము కూడా సహకరిస్తాడు పర్లే, కానీ మరి ఈ నవనిర్మాణ సభను పెడతాడు పోయి గుజరాత్లో పెడతలేవు, పక్కన కేరళలో పెడతలేవు, పక్క తమిళనాడు పెడతలేవు, ఓన్లీ తెలంగాణకు వచ్చి ఆయనే పైసలు ఇస్తే ఏ నటన అంటే ఆ నటన ఏమంటాడు। तेलंगाना टीचर अहलियत टेस्ट TSTET 2026 का शेड्यूल महकमे स्कूल एजुकेशन ने जारी कर दिया है। ये इम्तिहानात 16 जून से 22 जून तक मुनक़िद होंगे। इम्तिहानात सुबह और दोपहर 2 शिफ्टों में होंगे। सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। अहदेदारों ने पास होने के मियार के साथ पेपर 1 और पेपर 2 इम्तिहानात की तारीखों का भी ऐलान किया। इससे इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अपने इम्तिहानात की बेहतर मनसूबाबंदी करने का मौका मिला है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्टी के सरकारी तर्जुमानों के तकर्रुर के लिए राहुल गांधी ने नई रिवायत शुरू की है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि टैलेंट हंट के नाम से तर्जुमानों की तकर्रुरी अमल में लाई जा रही है। कौमी और रियासती सियासी हालात से बाखबर अफराद को मौका फराहम करने इसका मकसद है। ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। ऐसे लोग जो माशरे की खिदमत का जज्बा रखते हैं वो इस ओहदे के अहल होंगे। टैलेंट हंट के नाम से जो रिवायत शुरू की जा रही है इससे नौजवानों का कौम की तामीर में अहम रोल रहेगा।
तेलंगाना हुकूमत ने तबादलों पर फिर से पाबंदी लगा दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ने 31 मई की नरमी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 1 जून 2026 से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है। महकमे फाइनेंस के तहत जो अहकाम जारी हुए हैं, इसमें यह कहा गया है कि अब तबादलों की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ चंद मामलात को इस्तिस्ना दिया गया है। हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि 6 माह की मुद्दत से किसी किस्म की नरमी की तजवीज़ पर गौर नहीं किया जाएगा। मुस्तकबिल में किसी भी नरमी के लिए वज़ीर आला से मंजूरी दरकार होगी। महकूम जात को हिदायत दी गई है कि मखलूआत जायदादें ऐसे मुलाजमीन से पुर की जाएं जिन्होंने अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर कम अज़ कम 1 साल की सर्विस मुकम्मल की हो। तमाम महकूम जात के सरबराहान को इन अहकाम पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में क़ायम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों से गुजारिश की है कि वो एयरपोर्ट के अंदर क़ायम मुसल्ला यानी नमाजगाह में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। देखने में आया है कि नमाजियों की कमी की वजह से ये नमाज गाहें अक्सर खाली रहती हैं। अंदेशा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में इन जगहों को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इस सिलसिले में मुतफ़क्किर हज़रात ने तमाम मुस्लिम मुसाफिरों से पुरखुलूस दरख्वास्त की है कि वो एयरपोर्ट पर क़याम के दौरान इन नमाज गाहों में जाकर नमाज अदा करे या वहाँ कुछ वक्त गुजारें। बीआरएस की लीडर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में आईटी कंपनियों के लिए अराजी फराहम की गई थी, लेकिन आज कांग्रेस की हुकूमत अराजियात पर डंपिंग यार्ड कायम कर रही है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने रुकन असम्बली अंजया यादव के हमरा सीतापुर देहात में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी डंपिंग यार्ड की तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। तेलंगाना रक्षणा सेना की जानिब से तेलंगाना जहदकारों की ख्वाहिशात के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने आंध्रा के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के तेलंगाना से मुताल्लिक़ रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया। कविता ने कहा कि दस्तूरी क़वायद के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई थी। पवन कल्याण तेलंगाना नवनिर्माण के नाम से इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। पवन कल्याण को पहले आंध्र प्रदेश पर तवज्जो देनी चाहिए। कविता ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वुज़रा लोकेश और पवन कल्याण को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने वाले बारिश के पानी को रोकने पर गौर करने की ज़रूरत है। आंध्रा के अवाम के लिए ये तौहीन की बात है कि उनके दारुल हुकूमत के सेक्रेटेरिएट में पानी जमा हो जाता है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती। పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన మీద ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు. అట్లనే నిన్న మన పాషం యాదగిరి అన్న ఒక మాట మాట్లాడంగానే ఇక్కడ వాళ్ళ ఏజెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆంధ్ర పోలీసు వాళ్ళు మా మేధావులు ఇంటికి వస్తారు. ఇట్లా చేస్తే మాత్రం ఊరుకోం, క్వశ్చనే లేదు. మాకు అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. మేము అనుకున్నది మేము ఖచ్చితంగా చెప్తాం. రాజకీయంగా దమ్ముంటే దాన్ని ఎదుర్కోండి. మీ కాడ రాజధాని కట్టుకున్నాడు రాదు శాత కాదు, కానీ ఇడికి వచ్చాట తెలంగాణ నవనిర్మాణం చేస్తారు. మా పని మేము చేసుకుంటాం, మా నిర్మాణం మేము చేసుకుంటాం, మా కథలు మేము పడతాం. రాష్ట్రం విడిపోయింది, ప్రజలు విడిపోలే. మీరు ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టకండి. చిచ్చు పెడితే మాట్లాడేటోళ్ళు లేరు, ఊరుకుంటోళ్ళు లేరు అనుకుంటారేమో. ఇగో ఈ జెండా రాకముందు లెక్క వేరే, ఇప్పుడు లెక్క వేరే. టీఆర్ఎస్ 2.0 ఇక్కడ, టీఆర్ఎస్ 2.0 ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మాత్రం మంచిగా ఉండదు. ఇదివరకు ఒకసారి పెట్టుకున్నారు, రాష్ట్రం వచ్చింది. बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस की हुकूमतों ने तेलंगाना को कर्ज में डुबो दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि पहले बीआरएस और अब कांग्रेस दोनों बदउनवानियों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस की हुकूमतों ने बरखी के शोबे को तबाह कर दिया, आवाम को एक गहरे बहरान की तरफ ढकेला जा रहा है। कांग्रेस इंदिरा राज्यम का दावा करती है, लेकिन मुफ्त बरखी की स्कीम पर पानी फेर रही है। फीस की बाज अदायगी न होने से कॉलेजेस सर्टिफिकेट्स फराहम नहीं कर रहे हैं। इससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। దాంతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నటువంటి ఒక పరిశ్రమలకు కానీ ప్రైవేటు పరిశ్రమలకు కానీ విద్యుత్ యొక్క వినియోగం డిమాండ్
దానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో కూడా సరైనటువంటి లెక్కలు లేనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఈరోజు ఈ యొక్క డిస్కామ్లు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. జెన్కోలను ఏర్పాటు చేశారు, డిస్కామ్లను ఏర్పాటు చేశారు, కానీ డిస్కామ్లు మాత్రం పూర్తి నష్టాల్లో కూరుకుపోయినాయి. మరొక వైపున విద్యుత్ కొనుగోలులో మీరు గమనించాలి. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान से अपना वेरिफिकेशन कराने की अपील की है. मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि अब तक सिर्फ 60% इस्तेफादा कुनिंदगान ने ही अपना वेरिफिकेशन करवाया है. बाकी इस्तेफादा कुनिंदगान को फौरी तौर पर अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहिए. रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि तमाम मंडलों के तहसीलदारों से ये दरख्वास्त की गई है कि जो इस्तेफादा कुनिंदगान सेहत की बिना पर मुतालिका दफातर को नहीं आ सकते उनका घरों पर वेरिफिकेशन किया जाए. रुकन असम्बली ने कहा कि वेरिफिकेशन फौरी तौर पर कराया जाए ताकि वज़ाइफ में कोई खलल न हो. मैं मलकपेट की आवाम से ख़ास तौर के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग पेंशन के लाइव वेरिफिकेशन नहीं कराए, अभी तक जो डेटा मैंने मंगा कर चेक किया है 60% के अंदर ही लोग अभी तक वेरिफिकेशन कराए और आधे लोग वेरिफिकेशन कराना है. मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ जो बेवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या डिसेबल पेंशन जो भी ले रहे हैं वो लोग अपना लाइव वेरिफिकेशन कराएं ताकि आने वाले दिनों में पेंशन रुक जाएगा तो उनको तकलीफ होगी. मैंने ख़ास तौर पर तमाम मंडल के एमआरओज़ को भी हमने मीटिंग लेकर कहा है कि जो लोग घरों से निकल कर आकर लाइव वेरिफिकेशन नहीं करा सकते उन लोग को आप घर के ऊपर जाकर भी वो लोग वेरिफिकेशन कराने को तैयार है, जो बिल्कुल ही नहीं चल फिर सकते. लेकिन बखैर कई लोग जो अब तक लाइव वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, मेरी उनसे तमाम से गुजारिश है कि टाइम जा रहा है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, आप लोग जल्द से जल्द अपना लाइव वेरिफिकेशन करा लें ताकि आपको वजीफा मिलने में कोई दुश्वारी ना हो. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं. इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कैंप ऑफिस पंजे शाह पर मजलिसी साबिक़ा कॉरपोरेटर्स के अलावा महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया. इस इजलास में हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पीने के पानी की सरबराही को मौसर बनाने और तातुल शुदा कामों को तकमील करने के सिलसिले में हिदायत दी गई. वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द दूर करते हुए राहत पहुँचाई जाएगी.
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार, सईदाबाद और अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 454 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद बताई गई है। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं उनकी भी जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस्तीफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। समीना तरन्नुम, शबाना खानम, ताहिरा बेगम, फरजाना साजिद, वाजिद, आबिदा फातिमा, गौरी बेगम, निजाम बी, आयशा सुल्ताना, शाहिदा अर्शिया। देखो भाई, जाओ उधर, बाहर जो उठाओ। शबाना बेगम। आज सईदाबाद, अंबरपेट और चार मीनार तीनों मंडल से मिलाकर 454 बेनिफिशरीज में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिसकी लागत 4 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है। हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है जल्द से जल्द कराएं, ख़त्म कराएं, और जो लोग शादी कराकर जो शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के पैसों के इंतज़ार में हैं, जल्द से जल्द उसको उनकी चेक्स उन तक पहुँचाए जाए। तेलंगाना सीआईडी ने गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। सीआईडी की चीफ चारू सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए गुज़िश्ता साल खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बेटिंग के केसेस की यकसुई आसान नहीं है। इन केसेस में मुख्तलिफ अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर होती है। चारू सेना ने बताया कि चंद माह कबल करीमनगर के साकिन साई कृष्णा रेड्डी ने अपनी एक शिकायत में बताया था कि 2024 जनवरी से 2025 जनवरी तक उन्हें 9,95,000 का नुकसान हुआ है। इस केस को खुसूसी टीम को मुंतकिल किया गया था। खुसूसी टीम ने इस सिलसिले में तहकीकात की। बताया गया है कि इस टोली में गुजरात के साकिनान मनीष सिंह, अभिषेक सिंह, अजीत सिंह, विजय पट्टेदार, योगल पट्टेदार और प्रतीक प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा दिल्ली के साकिनान दास, अभिषेक, हलीम, पंजाब के लव कुमार, सीमाप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 कारें, 8 लैपटॉप, 2 आईपैड्स, 26 मोबाइल फ़ोन, 5 पासपोर्ट और 3,21,000 रुपये की नकद रकम जब्त की गई। इस टोली के अरकान को यौमिया 8 ta 10 लाख कमीशन भी मिला करता था। सीआईडी की तरफ से ये कार्रवाई दिल्ली, गुजरात और पंजाब में की गई। 46 अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। तेलंगाना स्टेट में पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सिट नियोजित किया है और इस सिट का मेन पर्पस ये है कि जो ऑनलाइन बेटिंग के केसेस हैं, इन ऑनलाइन बेटिंग केसेस को सिट जो है सुपरवाइज करेगी, इनका इन्वेस्टिगेशन और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। ऑनलाइन बेटिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी वक्त लगता है। कुछ महीने पहले करीमनगर से एक कंप्लेनेंट था जिसने कंप्लेंट करी थी कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया ऑनलाइन बेटिंग डाफाबेट ऐप पर खो दिया है और उसने जब अपनी आप बीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे शुरू में कैसे उसने स्टार्ट किया और उसको कैसे ट्रैप किया गया है, इस बेसिस पे करीमनगर पुलिस स्टेशन में जब रजिस्टर हुआ केस, उसको सिट ने फिर सीआईडी में ट्रांसफर कर लिया।
और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद लगभग हमको 4 से 5 महीने लगे हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। अलग अलग लेयर्स, 8 लेयर लगभग हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, 46 अलग अलग न्यूल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज, और फिर फाइनली जाके इनके द्वारा अक्यूज तक हम पहुंच पाए। इसमें 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो 11 अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, उसमें एक अफगानी नेशनल है, 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं, और इनका जो अभी हमने प्रीलिमिनरी बैंक ट्रांजैक्शन इनका जो देखा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपया रोज इनको कमीशन के तौर पर मिलता है। तो ये बताते हैं कि ये कमीशन है 1.5%। तो 1.5% इनका कमीशन अगर रोज 10 लाख रुपया बनता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे डाफाबेट ऐप का अमाउंट का। मैं केवल ये बोलूंगी इस मामले में कि बेटिंग किसी भी प्रकार से एक अच्छी आदत नहीं है, तो इस आदत को छोड़े। आप भले तेलंगाना में खेलें, कहीं और जाके खेलें, आपका पैसा डूबना ही है। और इसमें कुछ लोग, जैसे हमने देखा है दूसरी फोर्सेस में भी देखा है हमने, और कभी कभी हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है कि ये बहुत बुरी लत पड़ गई थी लड़कों को, जहाँ एक लड़का खेलता है 20 लाख रुपया लूज करता है, लेकिन वही ऐप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है कि देखो मैंने तो लूज कर दिया, लेकिन आप अगर अच्छा खेलेंगे तो शायद आप जीत जाएंगे। तो वो दूसरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करता था ये ऐप्स पे खेलने के लिए, और फिर दूसरे लड़के भी 10-10, 20-20 लाख रुपए लूज करते थे। तो जो ये कार्मिक वर्ग है, जो एम्प्लॉइज हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये लाखों रुपया सिर्फ इन बेटिंग में अपना इन्वेस्ट करें। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी सारी पब्लिक से कि बेटिंग ऐप से दूर रहिए। इस पे इन्वेस्ट करना, इस पे गेम्स खेलना, ये अगर आदत बन गई है, अगर आपको लत लग गई है, आप इससे बाहर आ जाएं, क्योंकि इसमें ओवर द लॉन्ग रन, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा पैसा जीत जाए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, आप सिर्फ अपना पैसा खोएंगे। तेलंगाना सीआईडी ने 25 मशहूर शख्सियात और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों की शिनाख्त की है, जिन्होंने मुबैना तौर पर ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म की तौसीक की है। इनमें से 4 ने अभी तक इस तरह की एप्लीकेशंस को फ़रोग़ देने के खिलाफ पुलिस की एडवाइजरी का कोई जवाब नहीं दिया। सीआईडी की डायरेक्टर जनरल चारू सिन्हा आईपीएस ने पीर के रोज़ मीडिया को गैर कानूनी सट्टेबाजी के नेटवर्क की जारी तहकीकात पर ब्रीफिंग देते हुए इन तहकीकात का इंकशाफ किया। पीर के दिन की गई कार्रवाई ने सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स की मशहूर शख्सियात की तौसीक़ पर रोशनी डाली है। मशहूर शख्सियात को ऑनलाइन जुए के ख़तरात के बारे में आगाही फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑनलाइन सट्टेबाजी के ख़तरात के बारे में बेदारी फैलाने में मुलविस अफराद से ताउन तलब कर रही है। मीडिया से खिताब करते हुए चारू सिन्हा ने कहा कि शिनाख्त शुदा 25 में से 21 मशहूर शख्सियात ने पहले ही वीडियो पैगामात जमा करवाए हैं जो आवाम को ऑनलाइन बैटिंग की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोकते हैं। माबाकी 4 ने बैटिंग प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ देने के खिलाफ अपने जवाब जमा करवाने बाकी हैं। तेलंगाना के चकतियाल में कार में बैठकर आईपीएल मैच देखने के दौरान बेकाबू कार बाउली में गिर गई। इस हादसे में कार चलाने वाला अरुण हलाक हो गया। बताया जाता है कि जगतियाल के मोरापल्ली के पास नवीश, अश्विन और अरविंद कार में जा रहे थे, लेकिन अरविंद जो मुबैना तौर पर मोबाइल पर आईपीएल मैच देख रहा था, कार पर काबू नहीं रख पाया और उनकी कार बाउली में गिर गई। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस नवीश और अश्विन को बचा पाई, लेकिन अरुण की मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं।
मीरचक पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ग्रैंड होटल के पास जीएचएमसी की गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले अदालत में उस वक्त दरख्त से करेंसी नोटों की बारिश होने लगी जब एक बंदर एक शख्स का नोटों से भरा बैग लेकर दरख्त पर चढ़ गया। बताया जाता है कि मुतासरा शख्स एडवोकेट सोहन पाल और आमिर के चैम्बर के पास आया था। स्टैम्प पेपर पर दस्तावेजी कार्रवाई के लिए 2 लाख रुपए का बैग उसके साथ था और जब स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए बैग ले जाया जा रहा था, बंदर ने बैग छीन लिया और करीबी नीम के दरख्त पर चढ़ गया। बताया जाता है कि बंदर ने बैग खोलकर नोट नीचे फेंकना शुरू कर दिए। कई अफराद वहां से नोट जमा करते देखे गए। बाद में पुलिस ने 1,98,000 की रकम जमा कर ली और बंदर से बैग छीनने में कामयाबी हासिल की। देखो एक वहाँ रुक गया वो फेंक रहा, वो फेंके वकील साहब ये उठाओ पहले, ये उठाओ, ये पन्नी तरफ चले जाएंगे। वकील साहब नहीं है, हमारे ही है। हाँ ना, भारी है भैया, भारी है दीवानी, हम तो खुद पहले। हाँ ठीक है। ग्लोबल तेलंगाना फोरम GTF की जानिब से हस्ब रिवायत हज 2026 में भी वॉलंटियर्स की जानिब से हुजाज इकराम की शानदार खिदमत रहीं। सदर ग्लोबल तेलंगाना फोरम मोहम्मद अब्दुल जब्बार अन्ना के मुताबिक खिदमत खल्क और जज्बे ईसार की रोशन मिसाल पेश करते हुए ग्लोबल तेलंगाना फोरम GTF हज वॉलंटियर्स टीम बराए हज साल 2026 ने हज के मुक़द्दस अय्याम में मक्के मुकरमा में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत को अपना शर्फ और रज़ाए इलाही का ज़रिया बनाया। सऊदी हकाम की जानिब से जारी करदा बाकायदा हज वॉलंटियर्स इजाज़तनामों के साथ GTF के वॉलंटियर्स जिद्दा, रियाज, दमाम और सऊदी अरब के दीगर इलाक़ों से यकजा होकर हुजाज इकराम की रहनुमाई और मदद के लिए मैदान में रहे। इस साल सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले वॉलंटियर्स ने मंजूर शुदा इजाज़तनामों के साथ हाजियों की खिदमत अंजाम दी। हज के दौरान सिर्फ मजाज और इजाज़त याफ्ता वॉलंटियर्स को ही खिदमत अंजाम देने की इजाज़त होती है। GTF वॉलंटियर्स ने सऊदी क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दी। इस रज़ाकाराना मुहिम की क़यादत मोहम्मद अब्दुल जब्बार अलमारूफ अन्ना बानी व सदर ग्लोबल तेलंगाना फोरम ने की, जबकि उनके हमरा मोहम्मद लईक नायब सदर और शेख इम्तियाज़ जनरल सेक्रेटरी ने तंजीम, मनसूबाबंदी और हिकमत अमली से इंतज़ामात की निगरानी की। इस मिशन में GTF के मुतादिद मरकज़ी अराकीन ने भी अहम किरदार अदा किया, जिनमें डॉक्टर जुनेद हुसैन शब्बीर, फैज़ मस्तान बादशाह शेख और मोहम्मद यासीन अली शामिल हैं, जिन्होंने टीम की तक़सीम, लॉजिस्टिक्स और मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमात की निगरानी की। सदर ग्लोबल तेलंगाना फोरम मोहम्मद अब्दुल जब्बार के मुताबिक GTF के तकरीबन 400 वॉलंटियर्स ने इस साल हाजियों की खिदमत और रहनुमाई में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमी का तीसरा दिन है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ग्लोबल तेलंगाना फोरम की जो टीम है, पूरी मुकम्मल मक्का की टीम और मुख्तलिफ मुकामों से यहाँ पर पूरे सऊदी अरब से जो है यहाँ पर वॉलंटियर के सर्विसेज के लिए यहाँ शामिल हुए।
2026 के हज के लिए मक्का में अलग अलग मुकामों से, जिद्दा, रियाद, तमाम से अलग अलग मुकामों से वॉलंटियर यहाँ पर आए और हुज्जाज इकराम की खिदमत किए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक हफ्ते से यहाँ पर टीम है और हमारे मक्के की टीम के जो सरबराह हमारे फाजल भाई पूरे एक महीने से जो है हज होने से पहले यहाँ पर पूरी टीम को लेकर व्हील चेयर से लेकर पूरे हाजियों का खाना, उनके तरतीब करना, काउंसलेट जनरल के साथ में और पूरे इंडियन एम्बेसी के पूरे कंप्लीट ऑफिशियल्स के साथ साथ जो है पूरा यहाँ पर तैयारियां कर रहे थे भाई। और पूरी टीम को लेकर हमारी ग्लोबल तेलंगाना की टीम भी इसमें शामिल है। मक्का के अंदर माशाल्लाह हमारे खलील भाई भी और इसमें जो है ना वो भी जिम्मेदार। तो यहाँ पर पूरे कई ऐसे यहाँ के मक्का के जो वॉलंटियर्स हैं ग्लोबल तेलंगाना फोरम के, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका हादिया ग्रुप और संबुला का जो जमिया के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं संबुला ग्रुप का और जो हादिया का, जो जिसने हमको यहाँ के तशरीफ प्रोवाइड कराया और हमको इस मौका फरहम कराया कि हुज्जाज अकराम की खिदमत करने का मौका फरहम कराया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुज्जाज अकराम की पूरी वॉलंटियर्स दिन रात मिलकर जो है पूरा अरफा, मीना, मुज़दलिफा, जो मीना से लेकर जाकर जो है अरफा गए, अरफा से फिर मुज़दलिफा आए, मुज़दलिफा से जो है फिर वापस मीना में आए, मीना में 3 दिन कंकरियां मारे और ये आज पूरा तीसरा दिन मुकम्मिल हो रहा है। हुज्जाज अकराम का अल्लाह ताला उनका हाजियों का जो हज कबूल फरमाए और जो है हमारे जो हाजियों की खिदमत करे हैं वॉलंटियर दूर दूर से आके, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है जो हम इनको शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि अल्लाह के मेहमान की खिदमत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मानसून की तैयारियों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। तबाहशुदा सड़कों, मुनहदिमा पुलों की मरम्मत के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। प्रोजेक्ट की देखभाल और गेट्स के काम जंगी खतूत पर किए जाएं। ओहदेदारों को दी गई हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने तबादलों पर लगाई दोबारा पाबंदी। 1 जून से अमल दरामद। तमाम महकमे जात को सख्ती से अमल की हिदायत। 6 माह तक नरमी की तजवीज़ पर गौर नहीं होगा। आम आदमी को लगा महंगाई का एक और झटका। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये का हुआ इजाफा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए वज़ीर आला ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम 2026 का ऐलान। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। तेलंगाना में 5 दिन काम का हफ्ता बनाने की तैयारियां। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब में वज़ीर आला के ऐलान का इम्कान। कार में बैठकर मोबाइल पर IPL मैच देखने का भयानक अंजाम। जगतियाल में कार बाउली में गिर गई, एक नौजवान हलाक। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खिलाफ CID का 3 रियासतों में क्रैकडाउन। 11 अफराद गिरफ्तार, 46 बैंक अकाउंट मुंजमद। CID चीफ चारू सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।